Hello and Assalamu alaikum. This is Nida for Nati CCL Urdu class. This class is conducted through CECA platform. CECA is not only providing this free Nati CCL Urdu class, but there's a lot other services which are provided by CECA. These services includes free student visa extension, free TIA 485 visa application, cheapest health cover programs, and cheapest professional years programs, free PT and IELTS classes, and free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, you can also contact our professionals. Visa immigration से related, if you have any query, you can contact our professionals. And नाटी और पीटी की क्लासेस का टाइम टेबल और स्केड्यूल आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा. So yes, come back to the Nati CCL Urdu class. A lot of students are taking tests these days, and hopefully they are achieving their scores as well. तो start करते हैं अपनी Nati CCL Urdu की class again with the schedule, with the structure of the test for those students who are gonna listen to this class for the first time. So it's important for them to understand the test structure first, and then they can start preparation accordingly. Nati CCL Urdu ka test, it consists of 2 dialogues. That's it. 2 dialogue होते हैं. Each dialogue around 300 to 350 words, not so long or lengthy. तो total marks इस test के 90 हैं and each dialogues 45. So 45 plus 45 is 90. And there are 2 passing marks criteria for this test. You have to achieve minimum passing marks and overall passing marks. So minimum passing marks in each dialogue are 29. So आपको 29 in each dialogue लेने ही लेने हैं ताकि you can pass this test. और overall passing marks के लिए you have to get 63 out of 90. So please जब भी अपना टारगेट रखें या अपना गोल सेट करें तो it shouldn't be in 20s, अपना 32 या 33 से अपना above ही गोल सेट करें ताकि आपके दोनों क्राइटेरिया easily achievable हों. Alright, तो ये हैं marks for this test. 20 to 25 minutes का ये टेस्ट होता है. सिर्फ 2 डायलॉग्स हैं, उनको आपने इंटरप्रेट करना है. एंड जितना आप अच्छा कॉन्फिडेंटली, लाउडली और करेक्टली ऑफ कोर्स करेंगे उतना ही क्विकली और अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा. ओके, अब इसका पासिंग मार्क्स, इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है इस टेस्ट का. नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट. सो इस टेस्ट के 4 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जिनको यू हैव टू कंसिडर. The first one is accuracy. Accuracy means the information should be correct from one language to the other. अगर आप उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो that should be the correct information you are interpreting. और secondly, in its interpretation test, so अगर आपको सिर्फ मीनिंग कन्वे करना पड़ जाता है so that's fine as well. word to word translation की जरूरत नहीं है. So the second criteria is distortion. Distortion is mispresentation of information के जो कि आपने सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा मीनिंग चेंज कर दिया पूरे सेगमेंट का. So that means कि अगर कोई चीज आपने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में लीगल है उसको आपने इलीगल बोल दिया या वाइस वर्सा या कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपने कर दी कि इसकी वजह से पूरे सेगमेंट का meaning change हो गया. that is called distortion. So this is also again a major mistake. And the third one is addition. Addition means कि आपने खुद से कोई information add कर दी है, unnecessary words और unnecessary sentences. So it's very important to keep in mind कि जितने sentences आपने एक language में सुने हैं उतने ही कोशिश करें, उतने ही sentences आप दूसरी language में उसको interpret करें. अपने पास से additional information आपको add करने की जरूरत नहीं है. So उसकी negative marking होगी.
The fourth and the most important thing is omission. Omission is some missing information. Mostly students are not capable to take notes properly, तो उसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है और आपको नोट्स टेकिंग टेक्निक्स का नहीं पता होता कि जिसकी वजह से आप तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसिडर किए बगैर जो भी की पॉइंट्स आपको समझ आते हैं वो ले लेते हैं और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है और उसके भी नेगेटिव मार्क्स होते हैं। सो ओमिशन इज अ मिसिंग इंफॉर्मेशन कि आपने एक दफा डायलॉग सुना, सेगमेंट उसका सुना और इट कुड बी अ क्वाइट लेंथी और इट कुड बी अ सो कॉम्प्लिकेटेड जिसकी अगर आपको समझ नहीं आई होगी, सो यू हैव द ऑप्शन टू टेक रिपीट। आपके पास रिपीट का ऑप्शन होता है एंड यू कैन से, और अभी तो जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे होते हैं तो उसमें आपके पास आपका खुद ही आप ऑपरेट कर रहे होते हैं अपना डायलॉग और उसमें सामने ही आपके पास रिपीट का ऑप्शन होता है एंड यू कैन लिसन इट अगेन। But as I mentioned, notes taking is very important for this test और आप कैसे अपने notes improve कर सकते हैं। Notes is the only asset for you in the exam. आपके पास कोई vocabulary list नहीं होगी, आपके पास कोई electronic device नहीं होगी, तो you only have to rely on your notes. So इसके लिए आपको बहुत 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 practice की जरूरत है। नोट्स हमेशा आपने बुलेट पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए ही लेना है। यू जस्ट नीड टू कंसीडर आप जिस पेज पे नोट्स ले रहे हैं उस पे बुलेट पॉइंट्स हैं और फर्स्ट सेंटेंस आपने पहले उसमें लिखना है, फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है। कभी भी नोट्स एक दूसरे में घुसाने की कोशिश मत करें या एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश मत करें। हर सेगमेंट के हर सेंटेंस को आपने एक अलग लाइन में लिखना है ताकि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप वो जगह छोड़ दें, कंसीडर के वो लाइन छोड़ें और नेक्स्ट पे जो समझ आ रहा है उसको लिखें टिल द एंड। कभी भी मिडल में नोट्स लेना मत छोड़ें कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन अंदर से मिस हो गई है, अब मैं नेक्स्ट एंड पे भी कुछ ना सुनूं और कुछ ना लिखूं। जहाँ इन्फॉर्मेशन मिस होगी इट्स ओके, आपके पॉइंट माइंड में फौरन क्लिक कर जाएगा कि मुझे इसके लिए रिपीट लेना पड़ेगा। सो जस्ट बट डोंट वेस्ट दैट लिसनिंग थिंग कि उसको मत लिसन करना छोड़ें। जो लिसन कर रहे हैं वो करें, उसको लिखें, जो जो पॉइंट समझ आते हैं वो लिख लें एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक रिपीट अगेन एंड जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है उसको जस्ट फिल करें एंड आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड और वो वहीं पे लिखना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और वो उस चीज को फिर जब वो सेकंड टाइम सुनते हैं तो मीन्स के वो आपको ना सिर्फ अगेन बिगिनिंग से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और सारे नोट्स लेने हैं। ठीक है, और हो सकता है कि सेकंड टाइम में भी वो आप नोट्स कंप्लीट ना कर पाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप नोट्स ले रहे हो या आपको लगे कहीं पे कि मेरी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, जस्ट रिलैक्स और अपनी इंफॉर्मेशन जो जो समझ आती है उसको लिखते जाएं। जहां समझ नहीं आएगी ऑफ कोर्स वहीं आपने रिपीट में वो इंफॉर्मेशन सुन के उसको आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। एज ए मेंशन कि रिपीट का ऑप्शन आपके पास होता है। इन ईच डायलॉग यू कैन टेक रिपीट वंस विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, but if you are going to take repeat second time then you have to, then it will be a -1। जितनी दफा आप रिपीट लेते जाएंगे उतनी ही दफा -1 होता जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज, उसकी मार्क्स डिडक्शन होती जाएगी। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज फ्लुएंसी, ठीक है, एंड देन vocabulary of course, then your confidence in your speaking नजर आना चाहिए। जब आप फ्लुएंटली बोलें तो पता चलना चाहिए कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी ग्रिप है इस लैंग्वेज पे। ओके, सो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट तो आपको जो ईमेल आएगी उसमें वो मेंशन करके भेजेंगे कि किन किन बेसिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। So it could be excessive pauses, excessive self-correction, excessive hesitation, excessive request for repetition। Of course, उसके तो नेगेटिव मार्किंग हमें खुद ही पता होता है कि रिपीट लेंगे तो -1 होता ही जाएगा। So these things you have to consider। अगर आप बहुत ज़्यादा pauses ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं एक दफ़ा इसको दोबारा बोलूँगा तो शायद it will be better, तो आप you can correct yourself, you can say sorry I repeat myself and then you start your answer from the beginning, not be the middle, not
इसका ये होगा मतलब कि अगर आप अपना आंसर कर रहे हैं और आपने कुछ पॉजेस ले लिए और आपको लगता है कि आई शुड स्टार्ट अगेन, यू कैन से सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ एंड देन स्टार्ट योर आंसर अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सॉरी से पहले वाला जो जो कुछ आपने बोला होगा तो वो उसको निग्लेक्ट करके आपका सॉरी के बाद वाला आंसर कंसिडर करेंगे, बट डोंट यूज दिस ऑप्शन सो मेनी टाइम्स बिकॉज इट विल ऑल्सो क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट और उसकी हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो। ऑलराइट गाइस, तो इसके अलावा टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं एग्जाम में जिस पे डायलॉग्स आ सकते हैं? दीज टॉपिक्स कुड बी बिजनेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, हाउसिंग, immigration, legal, traveling, social services, and insurance. So these are the topics जिन पे dialogues आते हैं. Alright guys, so this is all about the structure of the test, marking criteria और topics जिनसे related test आ सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है नोट्स टेकिंग के लिए या अपना आंसर रिकॉर्ड करवाते वक्त। हर सेगमेंट के बाद एक 3 to 4 सेकंड लॉन्ग बीप होती है, उसमें आपके पास टाइम होता है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद भी आप 5 सेकंड्स तक टाइम लेके अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, बट डोंट डिले टू मच क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद डिले करेंगे इतना ही ज़्यादा नुकसान आपको खुद होगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में है देर आर चांसेस कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा देर अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा आप नोट्स ले सकते हैं लें और क्विकली अपना आंसर स्टार्ट करें। ओके, so again I need to mention this class is conducting through from CECA platform. CECA is not only providing this NATI CCL Urdu class, but there's a lot of services which are provided by CECA free of cost. कोई charges नहीं है इन services के लिए, तो अगर आपको इन services के लिए कोई भी मदद चाहिए, you can contact our professionals through email, through call. Of course, because of lockdown, अभी restrictions ऊपर नहीं है, you can't visit the offices, but yes, online all services are available. And these services include free student visa extension, free 485 visa application, cheapest professional year programs, and cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, and free PT and IELTS classes, and free NATI classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, you can contact CECA as well. Means वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है या अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, you can contact our professionals and you can take advice free of cost. So I always suggest कि अगर आपको कोई भी अपना डिसीजन करना है अपना पीआर से रिलेटेड या अपना कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी चेंज करने से रिलेटेड, तो एक दफ़ा आप CECA के प्रोफेशनल्स हमारे प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट कर लें। And this NATI CCL Urdu class is conducted every Sunday 11 to 1. If you want to join me in the live session, you can come and join the session through a passcode. This passcode is 2ZP3HE. I repeat it, 2ZP3HE. So if you want to join me in the live session, you can come. You are almost welcome. And this class conduct every Sunday 11 to 1 p.m. ओके गाइस, सो ये मैंने सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया टेस्ट का। आज हम कुछ डायलॉग करने की बजाय आई विल एक्सप्लेन द वोकैबुलरी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड और उनको कुछ वर्ड्स जैसे बहुत जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं दे शुड ट्राई टू स्पीक इन उर्दू। इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने की बजाय हमें उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों, बिकॉज हम पाकिस्तानी और उर्दू स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उर्दू बोलते हुए इंग्लिश के इतने ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें उर्दू टू इंग्लिश करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब इंग्लिश टू उर्दू करना होता है तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते, हमें उर्दू वोकैबुलरी नहीं मिलती। तो कोशिश करें
ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के ही लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बातचीत या डेली आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बातचीत कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हुए करें। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन दैट जब भी आप नाटी सीसीएल उर्दू के टेस्ट की तैयारी करें, तो ये सीसीएल ट्यूटोरियल्स की ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा उर्दू के डायलॉग्स हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि इसमें आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। रिकॉर्डिंग आप खुद अपने आंसर की कर सकते हैं एंड देन इन द एंड यू कैन कंपेयर इट विद द सैंपल आंसर और आपको खुद अपनी रिकॉर्डिंग सुन के समझ आ जाएगी कि आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आप कहाँ पे अननेसेसरी पॉजेस लेते हैं या कौन-सी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर ली। तो ये सिर्फ़ आप खुद ही सेल्फ एनालिसिस तब कर सकते हैं, जब आप अपनी ही प्रिपरेशन की रिकॉर्डिंग खुद सुनेंगे। ऑलराइट सो सीसीएल ट्यूटोरियल्स की आप ज़रूर डाउनलोड करें, उसे सिर्फ लॉगिन करना है एंड देन यू कैन एक्सेस द डायलॉग्स। उसपे अराउंड 12 डायलॉग्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस देयर। और सेकेंडली मेक योर वोकेबलरी लिस्ट एज वेल। जब भी आप प्रैक्टिस करें, अपनी एक वोकेबलरी लिस्ट ज़रूर बनाते जाएं। इट वुड बी एट एट द एंड ऑफ नोटबुक और किसी भी सेपरेट पेज पे, ताकि जब आपको रिवीजन करनी हो या बिफोर द एग्जाम डे आपके पास एक अपनी वोकेबलरी लिस्ट हो, जिसको आपको पता है कि मैंने कहाँ-कहाँ यूज़ करना है। अपने हाथ से जो भी लिखा होगा दैट मस्ट बी इन योर माइंड। ओके, सो ये हो गया सीसीएल ट्यूटोरियल्स की ऐप के बारे में और वोकेबलरी लिस्ट के बारे में। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग regarding this test. Okay, so now I will explain you a bit of vocabulary today and then next week we will do dialogues again. Okay.